Yes, students, any doubt from the last class? No doubts? So last time we have started Zener diodes. Right. So let me just recap you what we have done last time. We have taken a circuit with resistance R here, and we have connected one Zener diode. And across this, we have placed a load resistance RL, across which we are measuring the output voltage V0, positive this side, negative this side, right? And here we have written the VZ voltage with maximum VZM, right? Or PZM rather. And from here, we are feeding the fixed VI. So that was the circuit which we have done last time, where this current was IZ, this current was IL, and this is our input current, I of I. Right. So last time what we have done is that we have taken that input voltage VI and R were considered as fixed one. And if this is fixed, so what we have kept that key in order to make this zero diode on, sorry, do you remember what you have written for the zero diode? Firstly, Sir, we in a diode. Vi is greater than Vz. Yes, when zero diode is on, Check the voltage drop across the RL. yes. If we found that the that our voltage across RL is greater than VZ, then we will apply that Zener voltage. Otherwise, we will Yes. treat it as an open circuit. Yes, very good. क्या नाम है बच्चे आपका? अनुज बंसल. अमित बंसल? नहीं सर, अनुज, ANUJ. अनुज बंसल, वेरी गुड अनुज. तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि जो आपका जीनर डायोड है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस जीनर डायोड एक्सीड्स VZ, ओनली देन दिस जीनर डायोड विल कम इनटू पिक्चर. और जब कन्वर्ट करते हो कैसे बनाते हैं हम इसको? वी रिप्लेस दैट विद द बैटरी ऑफ VZ. तो हमने ये चीज पढ़ी थी, अगर जीरो डायोड कनेक्ट कर रहा है वो कब? अगर इस दो पॉइंट्स के बीच में, लेट मी कॉल दिस 1 and 2 पॉइंट, if the voltage between 1 and 2 is greater than VZ, then Zener diode is said to be on, right? And if V12 is less than VZ, it is off. Yes, sir. ये हमने लास्ट टाइम सीखा था. और हमने कहा था अगर ये ऑफ होगा तो कैसे रिप्लेस करेंगे? विद अ ओपन सर्किट. गॉट इट? तो हमने कहा लास्ट टाइम ये देखा था कि अगर आपकी इनपुट भी फिक्स्ड है, आरएल भी फिक्स्ड है, तो हमने क्या कहा था कि देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्वड. फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? रिप्लेस किया था किसको? जीरो डायोड को, है ना? और क्या निकाला था? वोल्टेज अक्रॉस जीरो डायोड. तो हमने क्या किया था? वी हैव रीड्रॉन द सर्किट लाइक दिस, where we have kept this open, and we want to measure what is the voltage across these 2 points. And for this we have applied which theorem? Just name the theorem. बताओ क्या नाम दिया था मैंने थ्योरम का? Voltage divider rule. Voltage divider rule. Yes, very good. So we have used voltage divider rule. For what? For measuring the voltage V. And we have found V is coming out to be how much? Vi into RL Divided by R plus RL. This we have find out last time कि अगर आपका ये कनेक्ट करेगा तो आपका ये V वोल्टेज आएगी फर्स्ट स्टेप में. अब करना क्या नेक्स्ट स्टेप में कि जो आपकी ये V आई, कंपेयर V विद VZ. सर हाँ जी सर एक बार लास्ट स्लाइड कर दो सर, मेरे को पता नहीं सर, वोल्टेज डिवाइडर रूल वो बता दो एक बार सर. हाँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है मैं यही बता देता हूँ आपको. देखो जैसे आप मान लो आपने वोल्टेज लगाई यहाँ पर VI, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आपकी R, फिर आपने एक और रेजिस्टेंस लगा दी मान लो RL, और यहाँ ग्राउंड है. अब मुझे यहाँ पर V निकालना है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है कि टोटल करंट निकालो पहले. टोटल करंट निकालना है पहले. टोटल करंट कैसे निकालेंगे? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. यस सर. So V upon R plus RL will be what? I. Yes, sir. यस सर. And what will be the V? V is I into RL.
तो कब कितना आ जाएगा v into RL upon R plus RL। ओके सर। तो ये वोल्टेज आ गई। अब इस वोल्टेज जो आपने आई, यहाँ पर VI आएगा, है ना, दिस इज VI। नाउ अब जो ये वोल्टेज आई आपकी कैपिटल V, इसको कंपेयर किससे करना है? विद VZ, VZ से। राइट। अब यहाँ पर ये देखना कि इफ V is greater than VZ, Zener diode is on, ठीक है, and if V is less than VZ, Zener diode Zener off। diode is off। तो लास्ट टाइम हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी किया था, राइट। तो दिस वे ऑलरेडी स्टडीड कि अगर ये ऑन होगा तो हमने कहा था कि ऑन के टाइम में क्या होगा, देयर विल बी सम Zener current IZ। तो इफ आई गो बैक यस हियर, सर। दिस इज योर IZ। ये कब आएगा? जब Zener diode आपका कंडक्ट कर रहा है ना। तो वो कितना होगा? वो हमने निकाला था लास्ट टाइम, दैट वाज IR, अगर ये IL है, IL और II दोनों का ये ना इनपुट करंट इज इक्वल टू IZ प्लस IL, IL। और IZ इज इक्वल टू व्हाट? II माइनस IL। और II को हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था? वी हैव रिटन इट एज IR, क्योंकि ये R रेजिस्टेंस है कि तो हमने कहा कि इसके क्रॉस R करंट फ्लो कर, सपोज करो, सो आई कैन राइट इट एज IR। यस सर। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया IZ, VZ फिक्स है। सो हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था कि व्हाट वाज द PZ, दैट इज IZ इनटू VZ, VZ। राइट। तो ये हमने निकाला था कि पावर डिसिपेशन across the Zener diode when it is conducting, for the case when my input is fixed and my load is also fixed, फिक्स्ड। right? Now we'll take the another case today, second case। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने पावर डिसिपेशन बताई थी Zener डायोड की अभी, हाँ, सर इसका कोई आर्टिकल है सर? एक जैसे आपने कहा था, मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था। नहीं प्रूफ नहीं, हमने कहा न्यूमेरिकल किया था इसका। हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपने क्लास लेक्चर लगाया लास्ट टाइम उसका, हमने PZ निकाला था। PZ इज द पावर अक्रॉस दिस Zener diode जो हमारी डिसिपेट हो रही है जब वो काम कर रहा है Zener diode, दैट इज I into V। यस अब सर। I कितना है उसमें? IZ फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कितनी है? VZ। तो हमने IZ निकाले इनटू VZ कर दिया, तो इसको हमने PZ निकाला और इसको कंपेयर किससे करते हैं? विद PZM। आपने देखा होगा मैंने पिछले फिगर में एक टर्म लिखी थी PZM, यहाँ पर देखो, यस सर। ये कहां से आती है? फ्रॉम द डाटा शीट। तो ये आपने निकालोगे, ये ऑलरेडी आपको गिवन होगी, जो भी आप Zener diode यूज करोगे उसकी मैक्सिमम डिसिपेशन पावर गिवन होगी। तो अच्छा, हमने given जब लास्ट होगी। टाइम न्यूमेरिकल किया था तो हमने PZ निकाली थी एंड वी फाउंड आउट दैट द PZ वाज कमिंग आउट टू बी लेस देन PZM, और ये लेस ही होनी चाहिए हमेशा। अगर इसके ऊपर होगी तो आपका Zener diode काम नहीं करेगा, यस, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेक्चर देखना लास्ट टाइम वाला, आपने देखा नहीं इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस। इन सेकंड केस लेट्स कीप फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल RL। अब सर्किट वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेट मी अगेन ड्रॉ द सर्किट। अब हमने इनपुट को फिक्स कर दिया VI, लेट मी राइट इट हियर आल्सो, फिक्स्ड, राइट। देन देयर इज अ सीरीज रेजिस्टेंस R, and then we are having a Zener diode, and there is a load resistance RL, VZ positive, negative, सर आपने पिछला लेक्चर डाल दिया था Zener बिल्कुल diode डाल वाला? दिया, बिल्कुल डाल दिया, चेक करो। यस सर, थोड़ा लेट डाला, संडे डाला था, डाल दिया। हाँ, राइट। अब देखो ध्यान से, हमने ये देख रहे हैं कि अगर आपका लोड वेरी करता है ना, हमने यहाँ लिखा ना वेरिएबल लोड। अब वेरिएबल लोड का मतलब क्या? मान लो मैंने इसके आगे आपका लैपटॉप लगा दिया एज अ लोड, मैंने एज अ फैन लगा दिया लोड, कुछ भी लोड लगा सकता हूँ मैं, है ना। सो हर एक लोड ही कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है वो। अब Yes, क्वेश्चन sir. यहाँ पर ये आएगा, हाँ जी बोलो, मैंने कहा समझ गया सर। समझ नहीं आया? मैंने कहा समझ गया सर, आपने अभी कहा ना हाँ। फैन लगा दिया कुछ भी। राइट राइट। तो RL क्या है बेसिकली? RL कैन आइदर बी लो, मीडियम और हाई, है ना। अब हमने ये क्वेश्चन देखना है कि अगर मैं Zener diode को यूज क्यों कर रहा हूं। पहली बात तो ये, हम Zener diode को यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यस। सो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अगर आपका लोड चेंज भी हो रहा है मान लो, या इनपुट चेंज भी हो रही है, तो आपका आउटपुट जो डिवाइस काम आउटपुट कांस्टेंट हो सर। यस। जैसे आप देखोगे पहले होता था कि आपके टीवीज के ऊपर या उसके ऊपर फ्रिज के ऊपर एक स्टेबलाइजर होता था सेपरेटली, आजकल आता है ना। तो पहले क्या होता, मान लो आपकी इनपुट वोल्ट कम आ गई,
तो यू विल जस्ट ट्राई टू इंक्रीज दी, ताकि आपका वो सिस्टम जो डिवाइस खराब ना हो। यस सर, यस तो ये इसका सबकी पर्पस वॉइस है कि लैग अगर होगी। आपका ठीक लोड सर, चेंज करे या आपकी इनपुट चेंज करे, दोनों में से कोई भी चेंज करे, बट स्टिल इट इज एबल टू प्रोवाइड द रेगुलेटेड वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। सर तो अभी हम, हाँ बोलो। सर आप वो थोड़ी सी लाइन रिपीट कर दो, आपकी वॉइस शायद कम होगी सर पीछे से पीछे हाँ, थोड़ी मैं सी। ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो टीवी है आपका, फ्रिज है, वॉशिंग, हर एक डिवाइस के साथ एक स्टेबलाइजर होता था पहले। यस सर, अब जो स्टेबलाइजर, अब भी ये स्टेबलाइजर ही अब नहीं है, अब इनबिल्ट होता है उसके अंदर। वो करता क्या है, उसका काम ये है कि मान लो आपकी इनपुट जो कभी 230 वोल्ट्स की जगह 240 50 पे आ गई, कई बार 200 होगी, है ना। यस सर, तो कई बार होता है कि इनपुट सप्लाई पीछे से कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। सो आपका जो डिवाइस जो उस सप्लाई से चल रहा है, वो डिवाइस डैमेज ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस हाई इन द फ्लक्चुएशन और लोअर इन द फ्लक्चुएशंस। सो फॉर दैट वी नीड ऑलवेज टू मेंटेन अ रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम। यस सर, फॉर दैट वी जनरली यूज दिस जीनो डायोड। तो यहाँ पर जीनो डायोड में क्या कर रहे हैं हम पहले ही केस लेके चल रहे हैं, जब आपके पास वेरिएबल लोड है और आपकी इनपुट फिक्स्ड है, तब इस केस में कैसे ये बिहेव करेगा। तो हम चाहते क्या है कि हर एक केस में जब भी हम रेगुलेटर लगाएं, तो हम चाहते हैं कि डायोड आपका हमेशा ऑन रहे, है ना। अगर जीरो डायोड आपका ऑन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट गेटिंग अ रेगुलेटर सप्लाई, इजंट इट? यस So यस we सर, want the Zener diode should be work always. Now the question is that if Zener diode works, for what value of the load minimum and maximum it will operate? That we have to find out now. What I want to say that what should be the RL minimum so that my Zener diode don't damage. is on, Okay. and what should be the maximum RL so that my Zener diode is on. ठीक है, मींस अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं ये रेगुलेटर लगा रहा हूं कहीं पर किसी डिवाइस के साथ, तो मुझे ये पता हो कि उस डिवाइस की रेजिस्टेंस कितनी है, तभी मैं बता सकता हूं, अश्योर कर सकता हूं, गारंटी की हाँ ये आपको जीरो रेगुलेशन प्रॉपर्ली देगा, है ना। अगर वो आरएल मिनिमम और आरएल मैक्स के बीच में लाई करता होगा आपका लोड, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएल मिनिमम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इतना फंडा क्लियर है कि अगर इस जीरो डायोड को ऑन करना है, तो मुझे क्या चाहिए, आई वांट द आउटपुट वोल्टेज शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू VZ VZ, or greater than VZ. In both the cases my Zener diode is ऑन। on. इतनी बात सबको क्लियर है, Yes, इसमें sir. किसी यस को डाउट सर, कि अगर मेरी वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट में वोल्टेज अक्रॉस दिस RL is equal to or greater than VZ, definitely my Zener diode will be in conduction, right. अब मुझे देखना कि सबसे मिनिमम वोल्टेज क्या होगी जो मेरे Zener diode को ऑन करेगी। सर P equals to PZM कर सकते हैं, P is equal to, मतलब P equals to P less than equal to PZM, क्योंकि अगर PZM से ज्यादा हो गया तो फिर तो वो बेकार ही हो गया अभी चीज। अभी हम पावर की बात नहीं कर रहे, पावर को भी होल्ड कर रहे हैं, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि कितनी मिनिमम रेजिस्टेंस रखूं मैं कि आपका डायोड ऑन हो जाए, है ना। तो वो निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हमें इतना पता है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स, लेट्स मी कॉल दिस पॉइंट नंबर 1 एंड 2, अगर पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में वोल्टेज इक्वल टू VZ हो जाए या VZ से ज्यादा हो जाए, तो डायोड आपका काम करता है ना। तो लेट्स टेक द मिनिमम केस कि आपका V0 कितना होगा, VZ के बराबर हो गया, राइट। इफ V0 is equal to VZ, तो अब मुझे बताओ कि what will be the value of in terms of the input voltage। तो हमने जो लास्ट टाइम लगाया था ना ये वाला वोल्टेज डिवाइडर रूल, दिस वन, ये वोल्टेज कहाँ आई थी, अक्रॉस जीरो टर्मिनल्स। Yes, sir. यस तो इट सर, मींस इफ दिस वोल्टेज इज नाउ बिकमिंग इक्वल टू योर व्हाट, VZ, VZ, VZ. तो मेरे को RL मिल जाएगा। हाँ. यस सर, So I will use this equation now. कि that is if V0 is equal to VZ, right? So VZ is equal to what? It means it is RL minimum into VI divided with RL minimum Sir, plus R. हाँ जी, सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने लोड लिया है वो RL जो हमारा मिनिमम है, वो तो हमने जस्ट सिंपल इक्वेशन लगाई है, वो RL मैक्सिमम भी हो सकता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, हमने अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी हम ये रेंज निकाल रहे हैं कि RL की कितनी मिनिमम रख सकते हैं, मिनिमम से मैक्स कितनी वैल्यू जिसमें सपोर्ट करेगा,
ठीक है, अगर हम RL मिनिमम निकाल लेंगे तो हमें ये पता है कि जो भी हम लोड लगा रहे हैं अगर वो उससे कम है तो ये 5L लगाने का कोई, यस सर, तो हम एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलेटर कि अगर मैं इस रेंज ऑफ लोड के अंदर यूज करूंगा कोई भी डिवाइस तो डेफिनेटली वो रेगुलेशन मिलेगी उसको। ओके सर। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम RL which this circuit supports. So for that we have considered that if the voltage across RL becomes exactly equal to VZ, then definitely my diode will have the minimum amount of, sorry, it will come into conduction and the resistance which we've got is the minimum value, RL minimum. Right. So now we are saying that if the voltage across this 1 and 2 is equal to VZ, or VZ किसके इक्वल है? If I apply the voltage divider rule, it is RL minimum into VA upon RL minimum R. यस सर, Now, if you solve this for RL minimum, let me solve it. VZ into RL minimum plus R into VZ is equal to RL minimum into VI. Or I can write RL minimum in bracket VZ minus VI is equal to minus R into VZ. I think सब कुछ wrong किया, हाँ ठीक है. Or what is the value of RL minimum now? Just take the reverse. So RL minimum कितना मिल गया आपको? R into VZ V2 VZ divided with VZ minus, VI, or I can write this equal to what? R into VZ upon VI minus VZ. इसमें किसी को डाउट कोई? सर ये नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया आपने इधर, क्या कर दिया? नेगेटिव साइन को निगलेक्ट क्यों कर दिया सर? कहाँ निगलेक्ट किया मैंने? देखो ध्यान से आंखें खोल के, क्या किया मैंने नीचे अच्छा डिनोमिनेटर में, ओके ओके सर, सॉरी राइट? तो हमने जस्ट इसको लिख दिया कि ये आपकी RL मिनिमम आ गई कि अगर मेरा लोड यस सर, इतना कम से कम होगा तो डेफिनेटली मेरे पास डायोड ऑन होगा. ओके सर, Now let me again write this expression in the next page. I got RL minimum as what I got? R into VZ upon VI minus VZ. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने ये RL minimum चूज कर दिया, so what will be the IL value? Will it be maximum or minimum? सर मैक्सिमम हो जाएगी ये। Yes, ये पॉइंट देखना है आपने कि जो मैंने RL मिनिमम निकाली, जिस RL मिनिमम के ऊपर मेरा जीरो डायोड काम कर रहा है वो आ गई, उस टाइम पे what will be the value of load current? That will be the maximum load current which your circuit can handle or achieve rather, right? So IL max कितना हो जाएगा? That will be simply how to compute that? VZ upon RL. यस सर, यस सर। यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको आउटपुट VZ? We have taken the V0 is equal to VZ case. सर RL तो मिनिमम आएगा ना उसके केस में, आई मैक्स बिल्कुल में। बिल्कुल. हाँ, तो फिर हमें वो लिखना चाहिए ना, आई मैक्स इक्वल्स टू VZ अपॉन RL मिनिमम। RL minimum सर, right? अब ठीक है? हाँ सर। हाँ. So it means now we are getting IL max as VZ upon RL minimum. Now the case is this, for this particular scenario, what is the voltage across this RL? If I go back to this R, is it fixed or variable? तो एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। Fixed है If I ये तो, want to measure the Fixed voltage है। across this R, is it fixed or variable? fixed है। फिक्स्ड है, Fixed। फिक्स्ड है, And how to compute that? VI minus VZ by R VZ equals to VI IR. minus VI minus VZ. VI minus VZ only, right? So it means VI is equal to VI minus VZ. VZ And now if this value is fixed, because my input is fixed and VZ is also fixed, यस so सर, it means IR जो करंट जनरेट होगा वो भी फिक्स होगा, यस हाँ। है ना? Current भी IR fix कौन सा होगा करंट है? सर। ये वाला IR देखो, वो कितना होगा? बताओ शाबाश. VI minus VZ by हाँ. upon R. अपॉन RL। Or I can write VR upon R, yes sir. हाँ। right? So now I got IR, I got IL minimum maximum. जब मैंने लगाई लोड मिनिमम तो I got IL maximum and I got IR value also. Now can you tell me what is the value of Zener current? If I go back, IZ, this is IZ. VZ। IR minus VZ Put IR minus minus IL, लन है ना? सर I minus IRL, I minus IRL।
दिस इज आई रिटन आई आर, जो इनपुट करंट आ रहा है ना आपका, जो आर के थ्रू जा रहा है, उसको मैंने लिखा आई आर। देखो यहाँ पर ध्यान से, ओके सर IR तो माइनस IL। यस, क्योंकि ये हमने इस नोड के ऊपर लगा हुआ है आपका केसीएल लॉ, एक करंट इनकमिंग है, दो आउटगोइंग है ना? Yes, sir. तो आई कनेक्ट आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। So from IL. there I got IZ is equal to IR minus here IL max. Now can you tell me? सर जो हमारी IR की वैल्यू आई है वही हमारी IL मैक्स की वैल्यू आ रही है। अगर हम RL min की वैल्यू पुट कर दे एक्सप्रेशन में जो ऊपर आया था, किस वाले में? इसमें ये वाली? ये जो IL max इक्वल टू VZ अपॉन RL min आया ना, हाँ हाँ हाँ, इसमें अगर हम RL min की वैल्यू पुट करें, कर देते हैं ये लो। It will be VZ divided with R into VZ into VI minus VZ. बिल्कुल ठीक। IR Just की cancel इक्वल आ out. गया ना। Yes. तो फिर सर ये थोड़ी गलत सी नहीं हो गई? मतलब IR और IL max इक्वल हो गया तो फिर IZ 0 हो गया। हाँ सर, फिर इस केस में तो हाँ जी IZ सर। 0 आएगा। एक मिनट, Zero क्या आएगा। बोल, दोबारा बोलो, क्या सर बोल रहे लाइक हो? ऐसे तो फिर हमारी जो आपकी IR है और जो हमारी IL मैक्स है ये तो इक्वल हो गई ना, हाँ Yes, जी तो sir. सर। IZ 0 आएगा। देखो ध्यान से, ये जो हमने IZ निकाला, ये IZ कौन सा निकाला कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? फॉर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL कि आपका IZ स्टार्ट होना शुरू हो, स्टार्टिंग IZ बहुत स्मॉल है, तो हम अगर सिंपल जनरल लिखते हैं, आई कैन राइट दिस एज कि जो आपका IR इज इक्वल टू IZ माइनस IL है, ये तो इक्वेशन वैलिड है। इफ दिस इज वैलिड तो IZ कैसे निकालेंगे? सिंपली IR माइनस IL से, यस सर। राइट। नाउ अब जो ये IL है, IL हमें निकालना है IL मैक्स, राइट। तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, बोल रहे IL मैक्स कैसे निकालेंगे? IL मैक्स कैन बी रिटन एज, आई कैन राइट हियर IR माइनस IZM। ये मैंने क्या Yes, sir. लिखा? जो आप IZM कहां से आएगा? इट इज अगेन लुकिंग फ्रॉम द डाटा शीट। तो आपका जो जीरो डाटा आप यूज करते हो, तो आप ध्यान रखो उसके अंदर क्या है, एक तो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक उसकी जीरो वोल्टेज है, एक उसका मैक्सिमम जीरो करंट भी है साथ में। तो क्या है मैक्सिमम? जीरो करंट व्हिच कैन बी फ्लो अक्रॉस जीरो डायोड। तो जब हमारा इनपुट करंट फिक्स है, आप ये लेके चलो, अगर इनपुट हमारा फिक्स्ड है, यस सर। अब फॉर इनपुट करंट टू बी फिक्स्ड, इफ आई एम रिड्यूसिंग द लोड रेजिस्टेंस, तो क्या हो रहा है? लोड की वोल्टेज बढ़ रही है, यस सर। तो लोड कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IZ? विल इट रिड्यूस और इंक्रीज? सर आपने क्या बोला अभी? देखो मैं एक सेकंड सर, वो वापस बोलना। आपने क्या किया? देखो, लोड रेजिस्टेंस को घटाया। मेरी बात सुनो, हमने क्या लिखा हाँ, पहले? घटाया। आई दोबारा बता रहा हूं, सुनो शुरू से। हमने क्या लिखा? IR जो है दैट इज इक्वल टू IZ प्लस IRL, ये लिखा था हमने, है ना? हाँ। अब हमने क्या कहा कि जो IZ है दैट इज IR माइनस IRL। अब जो ये IRL है, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लोड, लोड, यस सर। सर। लोड रेजिस्टेंस पे। राइट। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं लोड को इंडेफिनिटली बहुत ही छोटा कर दूं तो क्या होगा? तो करंट तो बढ़ जाएगी ना। बढ़ जाएगा करंट बढ़ जाएगा, लेकिन जीरो काम में नहीं आएगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो हमने ये निकाला कि IL मैक्सिमम से आपने ऑब्टेन किया, जो आपका IRL है, ये हमारे पास कौन सी वो रेजिस्टेंस करंट है जिस टाइम पे आपने रेजिस्टेंस मिनिमम रखी है अपनी। सर जीरो VZ थोड़ा ना चेंज हो गई, वो तो हमारा करंट चेंज हुआ ना। वही मैं कह रहा हूँ मुझे, देखो यहाँ से, ये हमारे पास, लेट मी ड्रॉ, ये हमारे पास सर्किट था, इसमें यहाँ से हमारा करंट आ रहा है, इनपुट करंट, राइट। और ये हमारे पास जीरो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर IZ जा रहा है, और ये हमारे जा रहा है IL या IRL, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका जीरो डायोड है, इट्स आल्सो हैविंग अ मैक्सिमम करंट रेटिंग, यस सर। ठीक है। तो इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। नहीं जा अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि अगर मेरा ये इनपुट सोर्स फिक्स्ड है, तो मींस हमने क्या कहा, ये आपका फिक्स हो गया। अब दिस टर्म इज फिक्स्ड, then if I increase the IRL by taking the RL to be minimum, then what happened to this IZ? हम घटेगी। घटेगी, जाएगी। तभी इक्वेशन बैलेंस होगी, हाँ यस हाँ। सर।
right? So it means now this IZ will be lesser value, but on the other side, if suppose I take the scenario where the RL value is increasing, then what will happen? It will result in reduction in IRL. Yes, sir. Yes, sir. I am having constant IR, then what will happen? I will have But IZ. IZ increasing. तो इसका मतलब क्या हुआ कि in any of the scenario my ZZ tries to accommodate the change in the load resistance by allowing the entire amount of current to flow through it. जब अभी आपने जैसे बोला कि आप लोड करंट को इंक्रीज कर रहे हो और आईआर आपका फिक्स है तो आईजेड चेंज होगा उस हिसाब से, पर जो हमारा आईएल मैक्स का जो एक्सप्रेशन आया था वो तो लोड रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आया था ना लास्ट में, वो वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर आया था, तो उसमें कहीं पे भी लोड रेजिस्टेंस तो है ही ये नहीं. कह रहे हो? यस सर. See IL max जो सा है आपका, that is मैक्सिमम लोड करंट कितना है, that is VZ upon RL, ये बिल्कुल ठीक है. यस सर. और ये हमने निकाला, ये वो वाली मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसपे हमारा जीरो डायोड ऑन होता है. क्योंकि ये सी जो आरएल मिनिमम है इसका रिलेशन आपका किसके साथ है? विद जीरो डायोड. यस सर. तो हम कितनी वोल्टेज लगाएं उसके अक्रॉस कि आपका जीरो डायोड काम करे. फॉर दैट वी हैव टेकन दैट कि जो आपका वोल्टेज डिवाइड रूल से V आया था, हमने उस V को कंपेयर किया और हमने यहाँ पर उसको सिंपल आरएल मिनिमम से रिप्लेस कर दिया आरएल को. तो अब अगर मैं ये वाले आरएल मिनिमम यूज करता हूं तो डेफिनेटली मेरा जीरो डायोड काम करेगा. एंड फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन दैट कि दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल मिनिमम. अब अगर ये आरएल मिनिमम यूज करता हूं मैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आईएल मिलेगा वो मेरे को मैक्सिमम करंट मिलेगा कि इससे ज्यादा मेरा लोड करंट फ्लो नहीं कर सकता. राइट? वो कितना आ गया मेरा? VZ अपॉन आरएल मिनिमम. अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा. ये आपका VZ अपॉन आरएल मिनिमम आ गया. जब ये आ गया हमारे पास, अब हमें निकालना क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग कि आपका जीरो करंट कितना होगा, IZ. तो वो निकालने के लिए हमें क्या बोला कि आपकी इनपुट की वोल्टेज फिक्स है. अगर इनपुट वोल्टेज फिक्स है तो आपका इनपुट करंट भी फिक्स है. एंड दैट करंट इज गिवन एज I ऑफ R, दैट इज VR अपॉन R. और IZ हमारे पास क्या है? IZ इज गिवन एज IR माइनस IL. ये जनरल है हमारे पास, चाहे आपका मिनिमम हो चाहे आपका मैक्सिमम हो. राइट? क्योंकि जो हमने इक्वेशन लगाई है ना केसीएल की बच्चे इस पॉइंट पे, दिस इक्वेशन इज जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका लोड करंट कुछ भी बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, चाहे आपने आरएम मिनिमम लिया चाहे आपने आरएम मैक्सिमम लिया. तो ये तो आपका हमेशा वैलिड रहेगा. लेकिन आपको मैंने एक चीज और क्या बताई कि आपका जो आईजेड है, आईजेड इज लिमिटेड टू आईजेडएम. तो मैंने इसके लिए बोला कि अगर आईजेडएम लिमिटेड है, इट मींस what should be the minimum value of IL min. So IL min कितना आएगा बताओ? As per that KCL equation, it should be IR minus IZM. तो अब जब आपका IL minimum आ गया, it means this is the minimum load current which can flow if I am using the maximum allowable zener current to flow through the circuit. And for this particular value of IL minimum, if I compute what will be the value of RL max, क्योंकि IL minimum का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस कितनी लगाऊंगा इसके अंदर, तो वो कैसे निकालूंगा? लोड वोल्टेज सेम है VZ डिवाइडेड विद IL. हुआ क्लियर को नहीं हुआ अभी भी? आई डोंट फील आपका हुआ नहीं हुआ सर. ओके, लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल समझ आएगा, उसके बाद आपको मैं भी शायद ज्यादा समझ में आए. ओके सर. Let's take a numerical, and I'm taking the book example. Let's take 1 kilo ohm, and let's take 1 zener diode. And here I am applying a load resistor of value say RL, and I am keeping it variable. This is a symbol for variable. I hope you know, right? तो जब भी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो लगा उसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल रेजिस्टर है. It is not fixed. This is a symbol of variable fixed resistance. This is a symbol of variable resistance. And I am applying the supply of VI as 50 volts. Positive this side, let's say negative. Right? And let's say current flowing across this is IL. It is here given as IZ, where you are given that VZ is 10 volts and IZM is also given to you as 32 milliampere. ये आपको डाटा शीट से गिवन ऑलरेडी,
ठीक है, आपने कुछ निकाला नहीं इसके अंदर, और आपका इनपुट करंट यहाँ से IR जा रहा है। अब निकालना क्या आपने सर्किट में, फॉर द गिवन नेटवर्क डिटरमिन द रेंज ऑफ RL and IL, right, that will result in VRL is equal to 10 volts। तो आपने ये रेंज निकालनी है कि लोड रेजिस्टेंस की और लोड करंट का रेंज क्या होगा, रेंज मींस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, अगर आप चाहते हो कि आपकी आउटपुट कहां पे लोड पे रहे, VRL as 10 volts। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। Right, now the first step is we want to compute RL minimum। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि आपकी जो लोड आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी है, VZ कितना है आपके पास, 10 वोल्ट्स। सर बोलो आई जो आई की वैल्यू आ रही है IL की, वो कितनी आएगी? आई की IL की IL निकालना है अभी हमने, given अच्छा है। हमें क्या निकालना है, देखो ना ऊपर, हमें एक निकालना है IL नहीं minimum। मैंने खुद सॉल्व करा है ना, अच्छा तो सॉल्व इसलिए किया, पूछ रहा बताओ हूँ। कितनी आ रही है, मुझे बताओ। सर 27 मिली एम्पेयर IL मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम। नहीं, जस्ट छोड़ लो, अभी करते सॉल्व। तो अभी हमने पहले निकालना है RL मिनिमम का फॉर्मूला भी लिखाया था हमने, क्या आया था वो, R into VZ अपॉन VI माइनस VZ, ये आया था ना? यस सर। चेक सर कर लो, IZ की वैल्यू 40 आ रही है। कितनी आ रही है? 40 मिनिमम और मैक्सिमम? मैक्सिमम। IZ और IR? IZ। IZ तो बच्चे नहीं, हमें IR तो निकालना ही नहीं है, हमें तो IL निकालना है। अच्छा ठीक है सर। और IZ की मैक्सिमम करंट कितनी दी हुई है, 32 मिलीएम्पियर इज गिवन, सो हाउ कैन इट बी 40? जस्ट छोड़ लो, अभी आपको समझ में आएगा सारा का सारा न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, पहले आपने RL मिनिमम निकालनी है, R into VZ अपॉन VI माइनस VZ करके, जस्ट पुट द वैल्यूज। R कितना है, 1 किलो, VZ is given to you as 10 volts divided with 50 minus 10। If you solve 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/4 1/4 क्या? रेजिस्टेंस ओम ओम नहीं है, गलत बोला है। किलो ओम किलो ओम। 1/4 ओम इज 250 ओम हो गया। 1 किलो ओम अच्छा, अपॉन 1 4 किलो ओम का, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी आ गई RL मिनिमम। यस सर। अगर मैं निकालूं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर R, वो हमने क्या लिखा था, VI माइनस VZ, यस सर। वो कितनी होगी, 50 माइनस 10, 10 40 वोल्ट्स। 40 volts फिक्स्ड होगी। नाउ इफ IR इज फिक्स्ड, व्हाट इज VR इज फिक्स्ड, द IR कितना आएगा, VR अपॉन R, RL तो 40 वोल्ट डिवाइडेड विद 1 किलो एम्पियर कितना आ गया, सर 40 मिली एम्पियर 40 आ मिली गया। एम्पियर। तो ये IR क्या आ गया, 40 मिली एम्पियर, मींस इनपुट करंट मेरा 40 मिली एम्पियर आ रहा है। जो बच्चे ने भी निकाला था ना IZ, वो IZ नहीं है बच्चे, वो IR है आपका, राइट। नाउ द मिनिमम लोड करंट, मिनिमम लोड करंट कितना होगा बताओ मुझे। अब यहां से 8 सर मिलियन 8 कैसे निकाला, क्योंकि हमें इतना IR पता equal to है IZ कि plus for this IL। particular circuit maximum value of zener current is given to you as 32 milliamperes। इसका मतलब इनपुट 40 आ रहा है, तो IL में मिनिमम कितना जाएगा, 8 milliamperes। I can write here as 40 milliampere minus 32 milliampere। ये क्या आया मेरे पास, IL मिनिमम। ये किसी को ना समझ में आया बताओ मेरे को। ये हमने कहां से निकाला कि हमने पहले टोटल इनपुट के अकॉर्डिंगली, इनपुट फिक्स थी हमारे पास, तो फिक्स इनपुट का फिक्स करंट आएगा। जो फिक्स करंट आया हमारा, उसको कंपेयर किससे किया हमने, विद जीनर करंट। तो जीनर करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी की मैंने, 32 मिली एम्पियर, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा वो। तो 32 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट जीनर अकोमोडेट कर सकता है। बाकी कितना बच गया, 8 मिली एम्पियर। सो 8 मिली एम्पियर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लोड करंट व्हिच विल फ्लो अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। सर मतलब हमें आई मैक्सिमम या फिर आई मिनिमम में से कोई एक दे रखा होगा। बिल्कुल, आई मिनिमम नहीं बच्चे। जीनर करंट का क्या होता है, जीनर करंट में तो आपके पास IZM गिवन होगा, मिनिमम तो कुछ है ही नहीं इसमें। मिनिमम तो ये है कि अगर आपकी वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल्स बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू VZ, तो आपका जीनर डायोड स्टार्ट हो जाता है कनेक्शन। ओके सर।
गॉट इट? तो अब हमारा IL मिनिमम आ गया. नाउ लेट्स गो अहेड. Once we compute IL minimum, let me write here IL minimum as 8 milliampere. Right? Now, if I got IL minimum, next निकालो, what should be the RL maximum for that? क्योंकि जब IL minimum आएगा तो उस टाइम पे लोड क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी. मैक्सिमम कैसे होगा निकालेंगे? सर. बताओ शाबाश. लोड के पास वोल्टेज कितनी आ रही है? VZ? VZ by 8 कर देंगे. VZ by 8. VZ by yes sir. VZ by 8 कितना आ जाएगा? 10 volts upon 8 milliampere. Coming out to 1.25 किलो. किलो ओम. तो ये आपका RL मैक्स आ गया और RL मिनिमम कितना निकाला था आपने पीछे? 250 ohms. तो अगर मैं इसको आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाऊं तो आई कैन मेक अ प्लॉट हियर. किसका? दैट इज VL वर्सेस RL. सो RL VL मुझे कितनी मिल रही है हमेशा? आई एम गेटिंग ऑलवेज 10 volts. Yes sir. राइट? Yes, sir. बट RL की मिनिमम कितनी आई थी मेरे पास? देखो पीछे 250 ohms. So means somewhere here let's say 250 ohms. So for 250 ohms I am getting 10 volts. Constant and maximum कितनी आ रही है आपके पास? 1.25 किलो ओम. So this is your RL min, this is your RL max. Likewise, I can make a plot showing VL with IL. अब VL कितना मिल रहा है? VL तो 10 ही मिल रहा है मेरे को हमेशा, है ना? But Yes, sir. IL कितना मिल रहा है? Let's go back. IL minimum coming out to be 8 8 milliamp, milliamp. 8 milliampere. right? And this is 8 milliampere somewhere here. Now you tell me what will be the IL max? तो वो 35 था ना. 32 milliampere था. 32 milliampere. 32 milliampere. See 32 milliampere क्या है? सर, IZM. जीनो डायोड का करंट. हम तो उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो IL लोड की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर. 40 नहीं रहे. ओके. It will be 40. तो जो हाँ, आप पहले कह रहे थे ना कि वो जीरो हो अरे। गया, हाँ ठीक है. वो क्यों? क्योंकि वो जस्ट वो ऑन हुआ था अभी. तो जब बिल्कुल मिनिमम पे स्टार्ट हुआ, अभी जस्ट वो ऑन हुआ, करंट था उस पे एस्टैब्लिश हो रहा है. इट विल स्लोली इंक्रीज, राइट? तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? हियर वी विल गेट maintain at constant voltage 10 volts and the maximum load current will be 40 milliampere. Why? Because जो आपका input current आ रहा है IR, that will become equal to IL. At that time IZ is approximately 0. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि डिटरमिन द मैक्सिमम wattage पावर डिसिपेशन. of the diode. पावर डिसिपेशन. Yes, निकालो कितने आगे बताओ मुझे. सर IZ into VZ वाला लगेगा ना फॉर्मूला. आप निकालो, बताओ मुझे कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे रहा है डायोड आपको? गिव मी द आंसर. एक कितना आया? 400 milli. How much? 400 milliwatt. 400 milliwatt. सबका ही आया? यस सर. सबका ही है, देख चेक कर लो. दिस आंसर इज सर 320. यस. क्या क्या? नाम है बच्चे आपका? हिमानी. हिमानी. वेरी गुड हिमानी. नाउ कैन यू टेल मी हाउ यू गॉट 320 मिलीवॉट्स? IZM VZ हो जाएगा उससे वो. क्योंकि हम देखो बात कर रहे हैं जीरो डायोड की, PZ मैक्स. सो मैक्सिमम वोल्टेज के पास डायोड कितना होगा? मैक्सिमम करंट कितना उसके अंदर? 32 मिलीएम्पियर. यस सर. और उसके बाद वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट्स. 32 into 10. ओके. यस. तो जब आपको जीरो डायोड में ऑलरेडी यू आर गिवन दिस IZM रेटिंग, तो इसके ऊपर तो IZ जाएगा ही नहीं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलो.
सर ये IR इज इक्वल टू IL, ये आपने क्या लिखा सर? IZ नॉट। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका मैक्सिमम करंट आ रहा है आईएल में, यस सर, कितना आ रहा है 40 मिली एम्पियर, यस और इनपुट करंट कितना है आपका 40 मिली एम्पियर। 40 मिलियन। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो गया ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस सर, तो उस टाइम पे आईएल कितना होगा 0। बस। तो हमने वही क्वेश्चन लगाई है ओके सर। यहाँ वाली इस पॉइंट पे। क्लियर हुआ? यस सर। Okay, if this is clear, let's take the case number 3. अब केस 3 बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है हमने। उसमें क्या करेंगे, अब हमने फिक्स क्या कर दिया, लोड, और वेरिएबल क्या कर दिया, वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज, और वेरिएबल इनपुट सप्लाई। So VI is now kept variable. So for this case, how to handle this case? Can you tell me? अगर आप इनपुट बढ़ाओगे तो इनपुट करंट बढ़ेगा, इनपुट कम करोगे तो इनपुट करंट कम होगा, बट हमें लोड के पास वोल्टेज फिक्स चाहिए। सो इट मींस वी शुड हैव हियर व्हाट शुड बी द, कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा करंट को, क्योंकि आपने कहा लोड रेजिस्टेंस। नहीं, अब हमें क्या, देखो इस सर्किट के अंदर, मैं लेट मी अगेन ड्रॉ सर्किट। जब मैंने आरएल को फिक्स कर दिया तो ये बात तो पक्की है कि वीजेड फिक्स हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू वीजेड, है ना। अब क्वेश्चन यहां पर ये आएगा कि जो मैं इनपुट यहां लगा रहा हूं वेरिएबल इनपुट, राइट। सो फॉर दिस वेरिएबल इनपुट व्हाट शुड बी द रेंजेस, कि मिनिमम कितनी लगाऊं और मैक्सिमम कितनी लगाऊं, ताकि आपका डायोड जो है वो कनेक्शन में रहे हमेशा, है ना। सो फॉर दिस लेट्स राइट डाउन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी आई मिनिमम। सर जितनी VZ की होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर मेरे को इसको वर्क करवाना है, यहाँ पर वीजेड है, तो इस पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, वीजेड वोल्टेज होने चाहिए, हाँ। राइट। सो आई विल Yes, राइट sir. दिस ओनली, कि फॉर कंप्यूटिंग दिस आई विल राइट VL is equal to VZ, that is equal to what, R into R into V। VI, this is my VI divided with R plus R plus RL। RL। ये वोल्टेज डिवाइडर फिर से लगाया है। नाउ ये इस टाइम पे वोल्टेज क्या होगी, इट विल नॉट बी VI, इट विल बी VI मिनिमम। कि अगर इतनी मिनिमम वोल्टेज लगाऊंगा मैं कि VL is equal to VZ हो जाए तो मेरा जीरो डायोड कनेक्शन में आ जाएगा, राइट। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट ट्राई टू सेपरेट आउट VI minimum, it will be VZ into R plus RL divided with R। और यस सर ये Right. केस रिपीट कर दो एक बार। उल्टा कर दिया बच्चे, देखो ये VI minimum कर दिया, इसको यहां ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ गया। नहीं सर एक बार मतलब केस 3 एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, केस 3 में बच्चे क्या है, हमने कहा कि फिक्स्ड RL है और वेरिएबल सप्लाई है। तो अगर RL फिक्स हो गया इसका मीन RL पे वोल्टेज कितनी आएगी, जो जीरो डायोड के पास वोल्टेज यहां पे है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको काम करेंगे तभी इक्वेशन होगी हमारी, तो फॉर दैट वी सेइंग VL शुड बी इक्वल टू VZ एट लीस्ट, है ना। तो हमें इतनी मिनिमम वोल्टेज लगानी है कि आपको वोल्टेज अक्रॉस जीरो डायोड इक्वल टू VZ आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने वही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया कि VL is equal to VZ, तो हमने जा रहे हैं और इक्वल टू R into VI minimum अपॉन R plus RL। तो हमने VI को रिप्लेस किया विद VI minimum, यस सर। कि ये हमारी मिनिमम वोल्टेज थी। सो फ्रॉम दिस वी गॉट VI minimum is equal to VZ into R plus RL। अब क्वेश्चन यहां पर आएगा व्हाट शुड बी VI maximum, हाउ टू डिसाइड द मैक्सिमम वोल्टेज। उसके लिए क्या करेंगे, for that particular case it depends upon the how much maximum current my Zener diode can afford or can accommodate। तो PZM से निकलेगी ना फिर वो। किससे निकलेगा, IZM। IZM से। देखो अगर आप, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट लगाई पहले, फिर मैंने कहा 50 वोल्ट लगा दी, फिर मैंने 500 वोल्ट लगा दी, अगर मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे लोड भी तो फिक्स चाहिए, हाँ। है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर ये इनपुट करंट बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यस सर। अब इस पॉइंट पे
ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज Value, गिवन yes, बाय sir. व्हाट IZM. Yes, sir. So it means IZM decides the maximum amount of IR. So I can write सर here लेकिन जो हमारी IZM निकलेगी वो तो हम PZM से निकाल सकते हैं ना? निकाला पीएस दे सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये तो गिवन हो गया आपको डाटा शीट से, उसको तो पॉइंट ही कोई नहीं है. हाँ. हमारा मेन कंस्ट्रेंट वो जो बात है वो क्या है कि आपका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितनी लगा सकता हूं मैं इसके लिए. सो दैट इज लिमिटेड बाय व्हाट, दिस IZM, है ना, क्योंकि Yes, sir. इससे ज्यादा करंट दोगे तो वो डैमेज हो जाएगा डिवाइस. चल तो जाएगा. इट मींस आपका जो अगर IZM मैक्स करे, इट मींस मैक्सिमम अगर आपका IR कितना करे, तो लेट मी राइट इट एज IR मैक्स. कि IR मैक्स का मतलब क्या, ये वाली IR, यहाँ IR है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू IZM प्लस IR. इसी लूप पे नोड पे सारी. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये आपका IR मैक्स आ गया. अब IR मैक्स आ गया, इट मींस नाउ वी कैन राइट व्हाट, दैट व्हाट शुड बी VI मैक्स. दैट इज नथिंग बट VR मैक्स प्लस VZ. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, कि जो मैक्सिमम वोल्टेज मैं यहाँ लगा रहा हूँ वो कहाँ कहाँ जा रही है, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस. Yes, sir. Yes. और मैक्स अगर IR मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज VR मैक्स ही आएगी. हाँ. कि VR मैक्स कितना है, IR मैक्स इनटू R प्लस VZ. तो बेस मैक्सिमम वोल्टेज मैं इतनी लगा सकता हूँ कि जो जीनर वोल्टेज के इक्वल हो प्लस द ड्रॉप अक्रॉस द R मैक्सिमम, जो मैं IR मैक्स निकाला. ये क्लियर हुआ को नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया. सबको होगा क्लियर? तो ये सर हमारी VI समझा दो मैक्स आ दोबारा गई. से. दोबारा सर? बताऊं? सर कनेक्शन वीक हो गया था सर एकदम से, पता नहीं क्या. कोई बात नहीं. कहाँ से वीक हुआ था? केस सर 3 आप से. ये डायग्राम से बता रहे थे सर, आप जीनर डायोड की वोल्टेज से. देखो हम बात कर रहे थे कि जो आपका फिक्स्ड आपकी RL है, वेरिएबल आपका सप्लाई है. तो जब हमने कहा कि आपकी वेरिएबल सप्लाई है, इट मींस उसकी कुछ मिनिमम होगी, उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी. यस तो हमने सर. कहा मिनिमम कितनी रखेगी डायोड आपका ऑन हो जाए. तो दैट मींस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेज आई वांट द वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, VZ. तो हमने कहा VR शुड बी इक्वल टू VZ. यस और सर. बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल वी फाउंड आउट कि दिस वोल्टेज इक्वल टू व्हाट, बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल इनपुट वोल्टेज इनटू R अपॉन R प्लस RL. R प्लस RL. तो हमने कहा अगर ये इक्वल टू VZ होगी, इट मींस I will replace VI with VI minimum. यस सर. So from this we got VI minimum as VZ into R VZ plus R. R. ठीक है, ये तो एक पॉइंट आ गया. अब दूसरी बात करें कि मैक्सिमम कितनी वोल्टेज लगा सकता हूं मैं, क्या मैं इनफाइनाइट लगा सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस Zener diode is also having some current rating maximum IZM. So इसके ज्यादा वो करंट हैंडल नहीं कर सकता. अच्छा, IL के ऊपर बात करता हूं मैं, ये वाला लोड करंट ये फिक्स्ड है क्योंकि आपका RL फिक्स्ड है. यस सर. राइट, तो अगर मैं अपना IR को बढ़ा रहा हूं तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग IZ भी बढ़ रहा है. बट IR कैन बी एक्सटेंड मैक्सिमम, IZ कैन बी एक्सटेंड अप टू IZ max. So it means IR cannot go beyond the value where IZM is increased further. So it means IR is equal to what? IR max is equal to IZM plus IL. IL. ठीक है. अब हमने क्या कहा कि अगर IR max आ गया तो इसका मींस मैक्सिमम वो ड्रॉप होगा यहाँ पर R के क्रॉस, वो मैं लिख दे VR max. ओके सर. तो अब मेरी जो इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम लगा रहा हूं वो किसके इक्वल होगी? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R एंड VZ. तो वो VZ लिख के दिया इक्वल. मैंने. यस सर. ओके सर. क्लियर? यस सर. So this was all regarding your Zener diode. इसका एक numerical भी है, you can solve it or else you can take next time. यहाँ क्लियर है? कोई डाउट किसी को? Okay, let me take your attendance now.